વંદે ગુજરાત। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ તથા બાયઝેગના સહયોગથી વંદે ગુજરાત હેલ્થ ચેનલ અંતર્ગત આયુષ વ્યાખ્યાનમાળાના આ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું ડૉક્ટર મેહુલ ત્રિવેદી, એસોસિએટ પ્રોફેસર, સરકારી હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ દેથલી સુદપુર, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે બુધવારનો દિવસ એટલે કે હોમિયોપેથિક સારવાર વિશે જાણવાનો દિવસ, હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા સમજવાનો દિવસ અને હોમિયોપેથિક સારવારને આપણા રોજિંદા જીવનના સ્વાસ્થ્યલક્ષી પ્રશ્નોમાં કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે વિશે સમજવાનો દિવસ। સારવારનો માનવીય અભિગમ ધરાવતી આ ચિકિત્સા પદ્ધતિ જેટલું આપણે સમજમાં આવશે તેટલું વધુને વધુ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે એ ઉપયોગી છે તે બાબત આપ સુધી પહોંચાડવાના એક નમ્ર પ્રયાસના ભાગરૂપે આ વ્યાખ્યાનવાળા આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ। આજનો આ મણકો આમ 181મો મણકો, અને જો હોમિયોપેથી વિષયને લઈએ તો હોમિયોપેથીનો આ 51મો મણકો આપની સમક્ષ અમે આજે રજૂ કરી રહ્યા છીએ। દર્શક મિત્રો, આપણી પરંપરા અનુસાર કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ તે પૂર્વે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આજના આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે જે કોઈ જાગૃતિની વાતો કરીએ તે તમામ જન સુધી પહોંચે અને તેઓ હોમિયોપેથિક સારવાર વિશે, હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા વિશે, હોમિયોપેથિક દવાઓ વિશે સમજણ ઊંડી કેળવે। સાથે સાથે આપણે એવી પણ પ્રાર્થના કરીએ કે હોમિયોપેથિક ચિકિત્સા પ્રાપ્ત કરનાર સૌ કોઈ નિરોગી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરે અને વ્યક્તિ પોતે અને તેના પરિવારજનો હોમિયોપેથિક દવાથી સ્વસ્થ રહે। અને આપણે એવી પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાને વરેલા એવા તમામ તબીબ મિત્રો એ હોમિયોપેથિક પદ્ધતિના સ્થાપક એવા ડૉક્ટર સેમ્યુઅલ હનીમેનના સિદ્ધાંતોને પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરે। દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લા 1 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી આપણે આ જે કાર્યક્રમ ચલાવી રહ્યા છે તેમાં હોમિયોપેથીના અલગ અલગ વિષયોને સાંકળી લઈને લોકોને હોમિયોપેથી વિશે જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ। અને હોમિયોપેથી વિશે પૂર્વે એવી પ્રકારની જાણકારી હતી અથવા તો લોકોમાં જે સંપૂર્ણ જાણકારી અથવા તો માહિતી હોમિયોપેથિક ચિકિત્સા વિશે હતી તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઉણપ હતી અથવા તો એ સ્પષ્ટ માહિતી ન હોવાને કારણે લોકો હોમિયોપેથિક સારવારને અપનાવતા, હોમિયોપેથિક સારવાર તરફ વળતા ક્યાંક ક્યાંક અચકાતા હતા અથવા તો ત્યારબાદ હોમિયોપેથિક સારવાર લેવા માટે જાય ત્યારે તેમના મનમાં અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો રહેતા હતા। તો આ પ્રકારના જાગૃતિ કાર્યક્રમ દ્વારા સૌ કોઈને એ જાગૃતિ મળેલી છે, એ જાણકારી મળેલી છે કે હોમિયોપેથિક સારવાર છે અથવા તો હોમિયોપેથિક દવાઓ છે એ આ પ્રકારની તકલીફોમાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે। પછી એ નાના બાળકોની તકલીફ હોય, એ ઉંમરલાયક લોકોની તકલીફ હોય, એ શહેરી લોકોમાં જોવા મળતા પ્રશ્નો હોય કે ગ્રામ્ય કક્ષાએ જોવા મળતા પ્રશ્નો હોય, એ શ્વસનતંત્રની બીમારી હોય કે પાચનતંત્રની બીમારી હોય, એ સ્નાયુઓ અને હાડકાને લક્ષી બીમારી હોય અથવા તો અન્ય કોઈપણ પ્રકારના ચેપી રોગો હોય, આવા અનેકવિધ વર્ણપટ ધરાવતી હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાની ઉપયોગિતા આપણે સમજવા માટે દર અઠવાડિયે એક અલગ પ્રકારનો વિષય આપની સમક્ષ લઈને આવતા હોઈએ છીએ। દર્શક મિત્રો, આજનો જે વિષય છે એ પણ આવી જ રીતે એક અલગ પ્રકારનો વિષય છે અને ઘણીવાર આ પ્રકારની જાણકારી ન હોવાથી આ વિષય અંતર્ગત જે હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા છે અથવા તો હોમિયોપેથિક સારવાર જો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો તેનાથી જે ફાયદા થતા હોય છે તેનાથી કદાચ લોકો વંચિત રહી જાય તેવી એક અગત્યની પરિસ્થિતિ, અને તે છે પ્રાથમિક સારવાર કે જેને અંગ્રેજીમાં ફર્સ્ટ એડ ટ્રીટમેન્ટ કહે છે। આપણે સૌ કોઈએ ક્યારેક ને ક્યારેક જીવનમાં આ પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરેલો હશે। કદાચ માણસ દેખીતી રીતે તંદુરસ્ત કાયમ રહેલો હોય પરંતુ આ ફર્સ્ટ એડ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે એ આકસ્મિક રીતે પડતી હોય છે। પછી એ ક્યાંક નાનું બાળક હોય, એ પડે આખડે અને એને તે જરૂર પડતી હોય છે। ક્યાંક બાળકને ઊંઘમાં જ કાનમાં મચ્છર ઘૂસી જાય અને એકદમ જ બોમ થઈ જાય અને એને તકલીફ માટે જરૂર પડતી હોય છે। ક્યારેક ઉનાળાની આ કાળઝાળ ગરમીમાં માણસ એકદમ જ ચક્કર આવે અને બેભાન જેવી પરિસ્થિતિમાં જતો રહે ત્યારે તેને પ્રાથમિક સારવારની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે। આવી અનેકવિધ સારવાર કે જ્યાં પ્રાથમિક તબક્કે તમારે કંઈક સારવાર આપો જેથી કરીને તેને યોગ્ય તબીબી સારવાર સમયસર મળી રહે, એટલે કે કહેતા કે યોગ્ય તબીબી સારવાર જે મળે તે પહેલેની પૂર્વ તૈયારી રૂપેની જે સારવાર છે એ પ્રાથમિક સારવાર છે। અને મોટે ભાગે કોઈપણ પ્રકારની જે પ્રાથમિક સારવાર હોય તેનો મુખ્ય હેતુ હોય છે
કે દર્દીનો જીવ બચાવવો. ઘણીવાર પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સામાન્ય દેખાતી હોય, પરંતુ જો એ તત્ક્ષણ એના ઉપર કામ કરવામાં આવે અથવા તો તેને ધ્યાને લઈ અને અસરકારક કામગીરી કરવામાં આવે તો આગળ એ પરિસ્થિતિ વધુ બગડતા અટકી શકે છે. અને પ્રાથમિક સારવારનું પણ એવું જ છે. મેં જેવી રીતે ઉદાહરણ આપ્યું કે ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં માણસ ઘણીવાર શરીરમાંથી પ્રવાહી ઓછું થઈ જાય અને એકદમ જ બેભાન જેવી પરિસ્થિતિમાં માણસ જતો રહેતો હોય છે. તો આ પરિસ્થિતિ જો સમયસર એને સમય સૂચકતા પ્રમાણે પ્રાથમિક સારવાર ન આપવામાં આવે તો કદાચ એ મોટી દુર્ઘટના સર્જી શકે છે. તેવી જ રીતે સર્જરી, જ્યારે કોઈ માણસને કોઈ ઓપરેશન કેવું કરવાનું હોય છે તેના પૂર્વે અથવા તો ઓપરેશન પછી, આ બે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમાં કાળજીની વિશેષ જરૂર છે. ઘણીવાર ઓપરેશન ખૂબ જ સફળ રહે, પરંતુ ત્યારબાદ નિર્માણ પામતી પરિસ્થિતિને કારણે ઘણી દુર્ઘટના સર્જાતી હોય છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા છે. એ ઉપયોગિતા શું છે, એ ઉપયોગિતાને કેવી રીતે આપણે એને સાંકળી શકાય અથવા તો તે ઉપયોગિતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, તેના મર્યાદા શું છે, તેના સ્કોપ શું છે, આ વિશે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો જાણતા હઈશું તો આપણે અપનાવી શકીશું અને જો અપનાવીશું તો તેના ફાયદા અચૂક પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અને આ પ્રાથમિક સારવાર જો તાત્કાલિક આપવામાં આવે તો તેના કેવા સુંદર પરિણામ મળી શકે છે તે વિશે પણ આજે આપણે જાણવું છે. અને તેટલા માટે જ આજનો આ વિષય છે પ્રાથમિક સારવાર અને હોમિયોપેથી. તે ઉપર માર્ગદર્શન આપવા માટે, તે ઉપર આપણને જાગૃતિ આપવા માટે આપણી સાથે આજે સ્ટુડિયોમાં જે નિષ્ણાત વક્તા ઉપસ્થિત છે તે ડૉક્ટર અભિષેક વાસનિક સાહેબ. સાહેબ પોતે અત્યારે સરકારી હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ દેથલી સિદ્ધપુર ખાતે લેક્ચરર તરીકેની પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. 11 વર્ષ કરતાંનો વધારેનો તેમનો પોતાનો ક્લિનિકલ અનુભવ છે. તેઓએ પોતે નાગપુર હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ ખાતેથી તેમની સ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરેલી છે અને ત્યારબાદ ML ધવલે હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ પાલઘર ખાતેથી અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરેલી છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ એક સન્માનિત સંસ્થામાંથી આ પ્રકારે અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેમની ચોક્કસ આ પ્રકારનો જે વિષય છે આજનો વિષય, તેમાં એમની પારંગતતા હશે જ, એ નિશ્ચિત છે. અને તેટલા માટે જ આપણે આ વિષય અંતર્ગત વાત કરવા માટે તેમને આમંત્રિત કર્યા છે. સાહેબ, આજના કાર્યક્રમમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સાહેબ આપણને એક પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આ જે વિષય છે તે ઉપર માહિતી આપશે અને ત્યારબાદ આપણે કેટલાક પ્રશ્નો અંતર્ગત પણ સાહેબ પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવીશું. દર્શક મિત્રો, આપને પણ વિનંતી કે જો આપને આ વિષયને લગતા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ આપણા જે નિષ્ણાત વક્તા છે તેમને પૂછી શકશો અને તેઓ આ વિષય પરત્વે આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે, જેથી કરીને આપની હોમિયોપેથિક સારવારની પ્રાથમિક સારવારમાં ફર્સ્ટ એડમાં કેવી રીતે ઉપયોગિતા લઈ શકાય તેના વિશે આપની ખ્યાલ છે, આપની સમજણ છે એ ખૂબ જ સ્પષ્ટ થશે અને આપ હોમિયોપેથીનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરી શકશો. સાહેબને વિનંતી છે કે તેઓ એમનું પ્રેઝન્ટેશન શરૂ કરે. यस सो खूब खूब धन्यवाद. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नियामक श्री आयुष कचेरी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपना नॉलेज फर्स्ट एड इन होम्योपैथी मैं आपके सामने रख सकूं. सो खूब खूब धन्यवाद सर. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग निराशा में ग्रसित हो जाते हैं कि जब उनके प्रियजन तकलीफ़ में होते हैं और वो प्राथमिक जो उपचार है या फर्स्ट एड जो है वो उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं. कभी कभार ऐसी भी परिस्थिति होती है जहाँ पर हमारे अनजान व्यक्ति जो है उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा फर्स्ट एड का नॉलेज ना होने की वजह से हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको प्रॉपरली नहीं कर पाते. तो सच में ये मेरा विचार है कि हम सभी भारतीयों को प्राथमिक उपचार का सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम वो पर्टिकुलर नॉलेज अगर हमारा नहीं रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम जिस पेशेंट को हम बचा सकते हैं हम उसको बचा नहीं पाएंगे. मेरा एक मित्र का एग्जांपल लेते हैं. मेरा एक मित्र है जो नॉन मेडिको है. अगर उनके फादर को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आ गया और उनके सामने ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन अगर उनको सही में प्राथमिक उपचार या उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में अगर मालूम होता तो शायद वो अपने फादर को बचा सकते थे. तो सच में मुझे ये लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का भी नॉलेज होना चाहिए. सो ये मेरा ये है. सो हम शुरू करना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में. तो सबसे पहले हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली फर्स्ट एड होता क्या है, यानी कि प्राथमिक उपचार होता क्या है. प्राथमिक उपचार का मतलब यही होता है कि जिसमें घर की जो चीज़ें हैं, आजू बाजू की चीज़ें हैं, उसका उपयोग करके हम उस पर्टिकुलर ग्रसित पेशेंट को हम वो ट्रीटमेंट दें ताकि उस पर्टिकुलर पेशेंट को हम हॉस्पिटल तक आराम से लेके जा सकें. इसको हम फर्स्ट एड ऐसे बोलेंगे.
तो फर्स्ट एड जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर, वैसे फर्स्ट एड बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे हम एक एक करके हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम लोग कितना टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर में आता है वो आता है कि फ़िश बोन इन नेक। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फ़िश खाते हैं, मच्छी खाते हैं। जब कभी मच्छी खाते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है कि गले में मच्छी का कांटा अटक जाता है। तो जब भी मच्छी का कांटा जब गले में अटकता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत सारे लोग गलत गलत चीज़ें उपयोग करते हैं। तो मैं डॉक्टर मेहुल सर से पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि अगर सपोज गले में मच्छी का कांटा अटक जाता है तो क्या हम लोग करते हैं સર? સામાન્ય રીતે જ્યારે આવો કોઈ પ્રશ્ન આવશે તો મારા ખ્યાલથી લોકોનામાં એક માન્યતા હોય છે, અને સાહેબે ખૂબ જ સુંદર વાત કરી કે આપણી જે માન્યતા છે તેમાં અને પ્રાથમિક સારવાર જે વૈજ્ઞાનિક રીતે કરવાની હોય તેમાં કેટલો ફરક છે આપણને ખ્યાલ આવે. મને ધ્યાન છે ત્યાં સુધી જ્યારે આ પ્રકારની સાહેબ તકલીફ હોય છે તો કાં તો દર્દીને બહુ જુદા વધારે પડતા પ્રમાણમાં કેળા ખવડાવી દેતા હોય છે, કાં તો પેટ ઉપર જોરથી જ ક્યાંક પંચ જેવું કરતા હોય છે જેથી કરીને બહાર નીકળી જાય. તો આવી અલગ અલગ માન્યતા લોકોમાં પ્રવર્તી હોય છે. સાહેબ આપ આજે વ્યવસ્થિત વાત કરો કે આમાં ખરેખર શું કરવું જોઈએ? यस, थैंक यू डॉक्टर मेहुल सर। यानी लिटरली मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जो है बहुत गलत गलत चीज़ें उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो वो केला खाना पसंद करते हैं, बहुत सारा केला खाओ। कुछ कुछ लोग जो है चावल का इतना बड़ा जो पीस होता है वो एकदम से गले में डाल के उसको निगलने की कोशिश करें ताकि वो जो मच्छी का कांटा जो है वो निकल जाए। या कुछ लोग बहुत गलत गलत चीज़ें करते हैं, पेशेंट के पीछे से जाएंगे, उसके पेट पे हाथ मारेंगे ताकि जो भी चीज़ खाई हुई है वो सब बाहर निकल जाए। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो हम पेशेंट को और तकलीफ़ देते हैं। हमारा काम जो है पेशेंट का तकलीफ़ कम करना है, ना कि पेशेंट का प्रॉब्लम और बढ़ाना है। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे घर में एक ऐसी चीज़ है जो हम फ़िश बोन को या मच्छी के कांटे को हम लोग बिना ये सारी चीज़ों के हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो कैसे हम ठीक करेंगे, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कैल्शियम, जो हमारा जो मच्छी का कांटा जो होता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर में अगर सिट्रिक एसिड अगर ऐड हो जाए, सिट्रिक एसिड अगर डालते हैं तो वो पर्टिकुलर जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब कभी मच्छी का कांटा अटक जाए तो हमें ना कि केला खाना है, ना कि हमें चावल का इतना बड़ा क्या बोलते से पीस खाना है, या नहीं तो हमको पेशेंट का जो खाया हुआ है सब बाहर निकालना है। बेटर है कि हमें नींबू जो है, नींबू उसको कट करना है और कट करके उस नींबू को हमें धीरे धीरे चूसना है फॉर 20 to 30 मिनट्स। जब हम उसका जो सिरप होता है, उस सिरप के अंदर में सिट्रिक एसिड होता है, और वो जब सिट्रिक एसिड उस पर्टिकुलर फिश बोन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन उसको वो डाइल्यूट कर देता है। तो जब वो डाइल्यूट करेगा तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो तकलीफ है वो इमीडिएटली कम हो जाएगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जब कभी भी आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के भी गले में मच्छी का कांटा अटक जाए दोस्तों, प्लीज़ ऑलवेज टेक हाफ नींबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक और एक प्रॉब्लम होती है, मैंने ये भी देखा है कि हाथों में कभी कभार हम वुडन ऑब्जेक्ट्स में कभी हाथ घुमाते तो कभी कभार हाथों में एकदम से फास्ट अटक जाती है, फास्ट अटक जाती है। तो जब फास्ट अटक जाती है तो ऐसी कंडीशन में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इतनी छोटी होती है कि वो दिखती भी नहीं है और हम उसको वहाँ से निकाल भी नहीं सकते। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। ऐसी कंडीशन में मैंने फर्स्ट एड के तौर पे अगर हम देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। ऐसा देखा गया है कि सिलिशिया 30 नाम की जो मेडिसिन है, अगर हम वो रिपीटेडली दिन में 3 बार अगर लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि चौथे 5वें दिन वो अपने आप वो पर्टिकुलर कांटा जो है वो निकल जाता है। तो सो ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट्स आल्सो गुड थिंग, अगर आप वो यूज़ करते हो तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है दोस्तों। तो सेकंड टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कान में कभी कभार हम सोए रहते हैं और सोते वक्त हमारे कानों में कभी कभार कीड़ा घुस जाता है। जब कीड़ा घुस जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो सच में मैंने कहा कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करना पसंद करते हैं। मैं मेहुल सर से पूछना चाहूँगा, मेहुल सर क्या लगता है आपको, कान में अगर कीड़ा चला जाए तो क्या करते हैं? नहीं, फिर आपने वही सर पूछा कि लोगों में अलग अलग तरीके के ट्रायल एंड एरर जैसा होता है निकालने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम गर्म तेल जैसा कान में डालने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी कोई चिपिया जैसा लेके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऐसी है कि वो कान को दिक्कत कर सकता है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा बोलते हैं, उसको नुकसान करने के रहता है। तो सर उसमें भी आप बताइए कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल ये जो गलत धारणाएं हैं इन्हीं को हमको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि सही नॉलेज अगर रहा तो हम पेशेंट को तकलीफ को हम बचा सकते हैं। मैंने बताया कि अब सपोज कान में जो कीड़ा जो है वो क्यों जाता है, उसके पीछे कारण हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला कारण जो है, हमारे कानों के अंदर में बहुत सारा वैक्स जो होता है, कीड़े कान में जो मैल होता है, उस मैल को वो खाने के लिए वो पर्टिकुलर कीड़ा जाता है।
अगर हमारा कान अगर हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो पर्टिकुलर कीड़ा वहाँ पर अट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो ये पहली बात। अगर सपोज वो कान में कीड़ा अगर चला भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करना पसंद करते हैं। कुछ लोग लहसन जो है तेल के अंदर में डालते हैं, उसको गर्म करते हैं और गरम तेल जो है कान में डालना पसंद करते हैं। गरम तेल कभी कान में अगर जाए तो इतनी तकलीफ होती है। मैंने अभी बताया हमको पेशेंट का तकलीफ जो है वो कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो ये पहला कारण। दूसरा, कुछ लोग बहुत सारे गलत चीज़ें यूज़ करते हैं। मैंने देखा है जब मैं फर्स्ट एड पढ़ा रहा था अपने पास्ट लाइफ के अंदर में, तो लोगों ने कहा कि हम खुद का पेशाब उसके अंदर डालते हैं। बहुत गलत धारणा है। कुछ लोग बोलते हैं टोबैको वाटर, यानी कि तंबाकू जो है उसका पानी उसमें ऐड करो और उसको उसके अंदर में डालते हैं। बहुत गलत चीज़ें वो लोग डालते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसी चीज़ें ना करें। तो हमें कौन सी चीज़ें को उपयोग करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम उसको गौर से देखें तो कीड़ा जो होता है, उन कीड़ों को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं लाइट को। अगर हम वो अट्रैक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन हमको क्या करना है, जब कभी कीड़ा अगर कान में चला जाए तो हमको उस पर्टिकुलर पर्सन की जो कान है उसको खींचना है और खींच कर वहाँ पर मोबाइल का टॉर्च लगा के सिर्फ रखना है, ताकि वो जो पर्टिकुलर जो कीड़ा है वो उस पर्टिकुलर लाइट को देखते हुए वो मूव हो। अगर सपोज़ हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये हमारी जो ये जो ट्यूब है, कान की ट्यूब है सपोज़, और यहाँ पर अंदर में कान का पर्दा है, और यहाँ से अगर हमने गरम तेल डाल दिया और सपोज़ यहाँ पर कीड़ा है, तो जब उस कीड़े को जब चटके लगेंगे या तकलीफ होंगी तो वो अंदर की ओर जाएगा, यानी कि वो कान के पर्दे की तरफ जाएगा और आपको और तकलीफ हो जाएगी। साथ में उसका गर्माहट से आपको भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर हम लाइट देंगे तो वो कीड़ा जो है वो अपने आप रिवर्स टर्न लेगा और वो धीरे धीरे करके वो बाहर निकल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, जब कभी हमारे कान में अगर सपोज़ कीड़ा चला जाए तो कभी भी गरम तेल, लहसुन वाला तेल, पेशाब, इवन टोबैको वाटर कभी ना डालें प्लीज़, क्योंकि उससे पेशेंट को और तकलीफ हो जाएगी और उससे पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ लाइट लगाने से ही वो पर्टिकुलर पेशेंट जो है जो पर्टिकुलर जो कीड़ा है वो बाहर आ सकता है। तो ये एक था। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है एपिस्टैक्सिस के बारे में, जिसको हम नाक में से, अभी गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर नाक में से खून आता है, रक्त आता है। तो जब नाक में से खून आता है, रक्त आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं फिर से एक बार मेहुल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या करते हैं मेहुल सर अगर सपोज नाक में से खून आता है? सर ज्यादातर लोग जब ऐसा होता है नाक से खून નાકમાંથી જે લોહી પડે એને સાદી ગુજરાતી ભાષામાં નસકોરી ફૂટવી એવું કહેતા હોય છે. નસકોરીમાં મોટે ભાગે લોકો પાણી નીચે માથું ધરી દેતા હોય છે અને લોહી બંધ કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે, અથવા તો માથું એક સાઈડ નમાવી દેતા હોય છે જેથી કરીને લોહીનો પ્રવાહ વધતો અટકી જાય. પણ આમાં પણ સાહેબ આપ વાત કરો કે ખરેખર શું કરવું જોઈએ જેથી કરીને એમાં રાહત મળે. यस, सो सच में मतलब इतनी सारी गलत धारणाएं भारत के अंदर में प्रेजेंट है, और मैं बताना चाहता हूँ लिटरली इससे नहीं कि हम पेशेंट की तकलीफ को और बढ़ा देते. अगर हमारे पास सही नॉलेज अगर है, और जब नॉलेज रहता है तो हम बहुत सेटल रहते हैं और हम इजीली पेशेंट को हम हेल्प कर सकते हैं. तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि हमें बॉडी का पैटर्न हमें समझते आना चाहिए. तो बॉडी का पैटर्न कैसे समझते आना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये जो पर्टिकुलर नाक से जो खून आता है वो ज़्यादातर गर्मी के सीज़न में आता है. तो गर्मी के सीज़न में जब कभी आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. આપણે એક પિક્ચરથી જોઈએ. एक पिक्चर से देखते हैं. अगर हम सब कंसिडर करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और उस ब्लड वेसल को अगर हीट या गर्माहट अगर मिलता है तो वो ब्लड वेसल्स जो है उसका डायलेटेशन होता है या उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है. और अगर हमारे ब्लड वेसल्स को अगर ठंडक मिलता है तो हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाती है. तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हीट से जब हमारे जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं उसको जब हीटनेस मिलता है, गर्माहट मिलता है, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, और जब उसको ठंडक मिलता है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. गर्मी में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे नाक में एक एरिया होता है जिसका नाम है लिटिल्स एरिया. वो लिटिल्स एरिया में बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम कैपिलरीज ऐसे बोलते हैं. वो जो कैपिलरीज जो है जब गर्माहट जब मिलती है तो ऐसी कंडीशन में वो पर्टिकुलर जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो इतनी छोटी होती है कि जैसे ही वो डायलेट होने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली वो बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने से नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है. तो ये रियल रीज़न है कि हमारे नाक में से खून निकलता है. अब जब कभी नाक में से खून निकलता है तो हमारे पास बहुत सारे लोग गलत चीज़ें बताने के लिए आ जाते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाक में से खून आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो उसके सर पे पानी डालो, ऐसे बोलते हैं.
जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर सपोज़ कोई पेशेंट मेरे पास में आता है और अगर मैं उसे कहता हूँ, वो मेरे पास पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे गले में दर्द है और मैं उसको घुटने के दुखने की दवाई दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर सपोज़ नाक में तकलीफ है तो उसके सर पे पानी डालने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम जो है नाक में है, सर पे नहीं है। सो बी केयरफुल, हमें नाक से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है। तो कभी भी सर पे कभी भी पानी ना डालें, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, बहुत सारे लोग जब कभी नाक में से खून आता है तो ऐसी कंडीशन में गर्दन जो है पीछे रखना पसंद करते हैं। दोस्तों, जब कभी हम गर्दन पीछे रखते हैं तो वो जो ब्लड जो बाहर आना चाहिए वो ब्लड पीछे जा रहा है, और जब पीछे ब्लड जाता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे इन्फेक्शंस और इंटरनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, ये गलत धारणाएं हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारा गलत चीज़ें मेरे लाइफ का भी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरी दादी जो थी, वो मेरे नाक में से जब खून निकलता था, वो जो गोबर का जो सूखा हुआ डंग रहता था, उपले को तोड़कर वो हम मुझे सूंघने के लिए बोलती थी, बोले उससे नाक में से जो खून आता है वो निकल जाए। बहुत गलत धारणाएं भारत के अंदर पसरी हुई है। तो प्लीज़ दोस्तों, जब कभी ऐसी सिचुएशंस आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो गड़बड़ जो है वो कहाँ पर है? हमारे नाक में है, जो लिटिल्स एरिया जो है उस जगह पर है। अब मैंने अभी बताया कि हमारे नाक के अंदर में जब गर्माहट जब मिल रहा है तो उसके वजह से ब्लड वेसल्स जो है उसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। जब ब्लड वेसल्स बढ़ गया तो हमको ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी ताकि वो ब्लड वेसल्स का जो साइज है वो कम हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको कोल्ड एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो कोल्ड एप्लीकेशन मतलब क्या करना पड़ेगा? हमको एक आइस लेना पड़ेगा। आइस को हम एक कपड़े में लेंगे और उससे फिर देन हमको नाक के आजू बाजू में हमको लगाना है। जब हम लगाएंगे तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर में वो ठंडक लगेगा, और ठंडक से वो पर्टिकुलर जो उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऐसे करके जो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर तो हमको बर्फ़ भी नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि हमारा जो ब्लीडिंग जो है उसको रोकने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ठंडा लगाने से ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होती है, उसी तरह से दबाने से या प्रेशर करने से भी हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो क्लॉट होती है। तो उसी प्रकार अगर सपोज हम माउंटेनस एरिया में, जहाँ पर कहीं पे भी आइस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे नाक में जो हड्डी होती है, हड्डी के नीचे का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन को हमें दबा के रखना है फॉर 20 मिनट्स। अगर हम उसको दबा के रखते हैं और मुंह से सांस लेने के लिए बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। सो प्लीज़ दोस्तों, जब कभी नाक में से कभी खून निकले तो कभी भी सर पे पानी डालना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर पे कोई उसका रीज़न ही नहीं है। गड़बड़ जो है यहाँ पर है, तो प्लीज़ अप्लाई आइस ऑन इट। कभी भी गर्दन पीछे ना रखे, क्योंकि जब कभी हम पीछे रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो जो ब्लड जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, उसके से एस्पिरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड कैन लीड टू बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें। अगर हम होम्योपैथिकली अगर बात करें इस पर्टिकुलर दवाई के लिए, जब कभी किसी का नाक अगर फूट जाए तो मिलीफोलियम नाम की दवाई जो होती है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है, मिलीफोलियम 200। अगर हम ये दवाई यूज़ करते हैं, इट इज़ फाउंड वेरी इफेक्टिव। इमीडिएटली जो नाक का जो ब्लीडिंग जो है वो इमीडिएटली रुक जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, जब कभी नाक में से खून निकले तो कभी भी गलत चीज़ें ना करें। प्लीज़ होम्योपैथी और साथ में फर्स्ट एड इसका उपयोग ज़रूर करें। तो हम आगे की चीज़ की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो कन्वल्जन्स के बारे में बात करेंगे, मतलब फीट आना या तो फिर आकड़ी आना। तो मेहुल सर, क्या लगता है जब कभी आकड़ी आती है तो क्या लगता है, क्या करते लोग? लोग सर फिर से वो अलग अलग टाइप का करते हैं। मानो पहले तो उसको दांत में चम्मच, मानो दांत के बीच में टंगना है तो करते हैं, જીભ કચડાઈ ના જાય એના માટે મૂકતા હોય છે। પછી ઘણીવાર ઘણી જગ્યાએ એવું પણ જોવામાં આવ્યું છે કે કાં તો એને ડુંગળી સૂંઘાડતા હોય છે, અથવા તો બહુ જ ગંધવાળી કોઈ પદાર્થ, કોઈ કપડું અથવા તો ચંપલ, આવું કંઈક સૂંઘાડતા હોય છે। આવા અલગ અલગ પ્રકારના અખતરા છે એ લોકો મોટે ભાગે ખેંચનાર દર્દીમાં કરતા હોય છે, જાણ્યા વગર કે ભાઈ આ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ। તો એમાં પણ સાહેબ જો આપ માહિતી આપો કે આમાં કયો ઉપચાર છે એ યોગ્ય હોવો જોઈએ, જેથી કરીને, કારણ કે આ ખેંચ એવી વસ્તુ છે કે સીધી જ્ઞાનતંતુ સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ છે। જો આમાં યોગ્ય પ્રકારે ઉપચાર ન કરવામાં આવે, પ્રાથમિક સારવાર ન આપવામાં આવે તો દર્દીને ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થતું હોય છે। અને આપણો પ્રાથમિક સારવારનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે દર્દીનો જીવ બચાવો અથવા તો એને ઈજા વધારે થતી અટકાવવી, આગળ વધારે ન થાય। તો તેમાં શું કરી શકાય સાહેબ? तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये जो जब कभी किसी को आकड़ी आती है, तो हमारे भारत के अंदर में लोग जब कभी किसी को आकड़ी आ जाती है तो सबसे पहले उसके आजू बाजू में लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग गलत चीज़ें करते हैं। जैसे मेहुल सर ने कहा कि सबसे पहले तो उसको प्याज सूंघाना पसंद करते हैं,
प्याज में कौन सा प्याज, तो किसी को पूछा तो बोलते नहीं लाल वाला, नहीं कुछ लोग बोलते सफ़ेद वाला, कुछ लोग बोलते कि नहीं 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 उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग चप्पल सूंघाते हैं, तो कौन सा चप्पल, रबर का चप्पल या चमड़े का चप्पल, तो चमड़े का चप्पल वो सुख बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत गलत लेवल तक जाते हैं, अपने सॉक्स गंदे ना धोए हुए जो सॉक्स है वो सूंघाते हैं। बहुत गलत लेवल पे भी मैंने बहुत बार जब मैं इंटरव्यू अपना फर्स्ट एड क्लास ले रहा था तो मैंने एक एक्सपीरियंस में आया कि वो लोग गटर का पानी जो होता है लकड़ी में कपड़ा डाल के गटर में डुबा के उसके पास में लेके जाते हैं। तो इतनी गलत चीज़ें उसके साथ में की जाती है। प्लीज़ दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो व्यर्थ है, कभी भी वो पर्टिकुलर चीज़ ना करें। मैंने कहा कि हमें साइंटिफिक होना है, हमें उसके पीछे की रीज़न समझते आना चाहिए। तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हमें आकड़ी क्यों आती है, क्या कारण है उसके पीछे। तो हमारे ब्रेन में हमारे एक सेल्स होता है जिसको हम न्यूरॉन ऐसे बोलते हैं। अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो उसमें दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको सिनैप्स ऐसे बोलते हैं। अभी जो सिनैप्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जो नर्व्स में जो सेंसेशंस हैं वो सेंसेशंस लेके जाने के लिए, यानी कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलेरेटर जैसा होता है और एक ब्रेक होता है। तो एक्सेलेरेटर का काम होता है कि गाड़ी को स्पीड बढ़ाना और ब्रेक का काम होता है उसको रोकना। तो एक्सेलेरेटर के हिसाब से अगर बात करें तो हमारे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उसका एक्सेलेरेटर बढ़ाने का काम जो होता है वो एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का होता है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। और ये एसिटिलकोलिन जो है उसका काम यह है कि वो कैसे भी करके हमारा एक्सेलेरेटर का काम करता है। एक्सेलेरेटर मतलब वो स्टिमुलेशन भेजने का काम करता है। उसी प्रकार से जो ब्रेक का काम है, यानी कि जो स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े उसको रोकने का काम जो है वो एक चीज़ करती है जिसका नाम है गाबा, दैट इज़ गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड नाम की एक चीज़ होती है, हमारे ब्रेन में रिलीज होती है। तो इसका काम यही है कि वो बैलेंस मेंटेन करता है। एसिटिलकोलिन अगर एक्सेलेरेटर बढ़ जाए तो ब्रेक मार के गाबा रोकने का काम करता है। तो ये नॉर्मली हमारे बॉडी में चलता रहता है। लेकिन कभी कभार जब कन्वर्जन जैसी सिचुएशंस आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर में एक्सेलेरेटर बढ़ जाता है लेकिन ब्रेक जो है वो फेल हो जाती है। तो जब एक्सेलेरेटर बढ़ जाए लेकिन ब्रेक अगर फेल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको रोकने वाला कुछ रहता नहीं और उसकी वजह से वो मूवमेंट वहाँ होती है और उसी की वजह साथ में हमको भी यहाँ पर भी मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये है कन्वर्जन्स का पीछे का रीज़न। अब ये जो एबनॉर्मलिटी है वो क्यों आई, क्या कारण है उसके पीछे, वो हमको समझते आना चाहिए। उसके पीछे का एबनॉर्मलिटी ये है कि वैसे देखा जाए तो उसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अपने को मालूम नहीं है। हमारी एक बुक है मदर बुक जिसको हम बोलते हैं, हैरिसन नाम की बुक, उस हैरिसन के बुक के अंदर में क्लियर लिखा हुआ है कि कन्वर्जन्स के पीछे का रीज़न जो है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से कभी कभार हमारे ब्रेन के अंदर में इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी किसी को कन्वर्जन्स आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके आजू बाजू में खड़े हो जाते हैं। जब हम आजू बाजू में खड़े होते हैं तो क्या लगता है आपको कि जब आजू बाजू में लोग खड़े रहेंगे तो उसको ऑक्सीजन की कमतरता है, उसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है, आजू बाजू में खड़े रहेंगे लोग तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में उसकी और आकड़ी जो है वो कंटिन्यूस बढ़ती रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों जब कभी भी किसी को आकड़ी आए तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, आजू बाजू के लोगों को बोलना है साइड में होने के लिए ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। ये सबसे पहला पॉइंट है। प्लीज़ कभी भी वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो कभी ना करें। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कन्वल्शंस या फीट की उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो विशेषता है वो क्या है, वो हमको समझते आना चाहिए। कोई भी कन्वल्शन जो है वो ज़्यादातर 1 मिनट या 1.5 मिनट तक वो रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1-1.5 मिनट के अंदर में क्या से क्या हो जाता है। अगर सपोज़ किसी को कन्वर्जन आ जाए तो सबसे पहले लोग प्याज लेके जाएंगे, तो वो सपोज़ आधे मिनट तक अगर रहा तो उससे इफेक्ट नहीं आया। फिर कुछ लोग जूता लेके जाएंगे तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी 1 मिनट हुआ है, 1.5 मिनट के बाद में ख़त्म होने वाला है। फिर अचानक जैसे चमड़े का चप्पल उसको सुंघाते हैं तो इमीडिएटली वो उठ जाता है और रियलिटी में वो चमड़े के चप्पल से नहीं उठा हुआ है, वो रियलिटी में उसकी बॉडी ने ही खुद उसको ठीक किया है। तो प्लीज़ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर गलत धारणा है उसकी तरफ ना जाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें साइंटिफिक होना है। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन की हमें उसको सप्लाई करना है, नंबर 1 पॉइंट। यानी दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी है, पंखा फास्ट कर देना है, या आजू बाजू में कुछ लोग अगर होंगे तो उनको साइड में करने के लिए बोलेंगे ताकि उसको ऑक्सीजन मिले, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, आजू बाजू में जो नोकीली चीज़ें हैं वो उसको साइड में कर दे, क्योंकि जब कभी वो आकड़ी में रहता है तो उसको मालूम नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है उसकी बॉडी। तो ऐसी कंडीशन में कभी अगर नोकीली चीज़ अगर रही तो उसकी वजह से उसकी बॉडी को इंजरी हो सकती है और उसको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें। अभी सर ने कहा कि हमारे माउथ के अंदर में टंग, क्योंकि जब कभी हम ये पर्टिकुलर सिचुएशंस करते हैं तो हमारे टंग बाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कभी कन्वर्जन्स आता है तो हमारा जो जीभ है वो बाहर आ जाता है और हमारी जो दांत है उसके बीच में वो फंस जाता है और उसके से दांत जो है दांत की वजह से हमारी जीभ जो है वो कट जाती है।
तो प्लीज़ ऐसी कभी कंडीशन आई तो रुमाल जो है उस रुमाल को हम फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं और डबल करके उसके माउथ में हम लोग रख सकते हैं। चम्मच रखने से भी कभी कभार ऐसी हो जाती है तो उसके दांत टूट सकते हैं। मैंने अभी कहा हमको पेशेंट के तकलीफ को बढ़ाना नहीं है, हमको पेशेंट की तकलीफ को कम करना है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी कन्वर्जेंस आए तो प्लीज़ कभी भी हमें गलत चीज़ों का उपयोग ना करें, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने चीज़ें बताई वो करना है। इसके साथ में एक होम्योपैथिक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। हमारे एक सर हैं डॉक्टर विलियम बोरिक सर, उनकी बहुत ही इफेक्टिव बुक है और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि अमाइल नाइट्रोसम नाम का एक होम्योपैथिक ड्रग है मदर टिंचर के फॉर्म में। उन्होंने बताया कि इफ़ दैट पर्टिकुलर अमाइल नाइट्रोसम ड्रग अगर 0.5 ml to 1 ml अगर हम हैंकरचीफ में रखते हैं और पेशेंट को अगर सुंघाते हैं तो इमीडिएटली पेशेंट जो है वो कन्वर्जन से बाहर आ जाता है। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव ड्रग है। अगर आप चाहें तो अमाइल नाइट्रोसम नाम का ड्रग जो है मदर टिंचर, अगर आप लेते हो इट इज़ फाउंड वेरी इफेक्टिव। उसको माउथ से देने की जरूरत नहीं है, ना उसको किसी चीज़ से देने की, सिर्फ सुंघाने से भी वो पर्टिकुलर मेडिसिन से जो है रिजल्ट दे सकता है। तो ये कन्वर्जन्स के पीछे भी हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। इसके साथ में हम बात करेंगे आगे का जो टॉपिक है वो है स्प्रेन के बारे में। तो ये स्प्रेन क्या होता है ये हमें समझते आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे स्प्रेन के बारे में तो कभी कभार जैसे फीमेल्स के बारे में बात करें कि फीमेल्स जब हाई हील सैंडल्स पहनते हैं, या लड़कों में भी ऐसे होता है कि वो जब दौड़ते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि हाई हील सैंडल्स पहने या हाई हील शूज़ पहने, तो ऐसी कंडीशन में सडन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लेग हो जाता है। जब कभी फुट का इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो बाहर की जो तंतु हैं वो थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है। स्लाइड दिखाइए सर आगे। यस, ये स्प्रेन के बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे तो राइट साइड में जो है वो नॉर्मल एंकल है जिसके अंदर में कुछ तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें जहाँ पर रेडनेस दिख रहा है, वहाँ के जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स का मतलब वो होता है कि जो दो हड्डियों को जोड़ता है उसको हम लिगामेंट्स ऐसे बोलते हैं, उसको हम हिंदी में तंतु ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभार जब कभी ऐसे इनवर्ड मूवमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में वो जो लिगामेंट्स जो है तंतु जो है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हमको मेहुल सर से पूछना पड़ेगा कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं हम लोग भारतीय? મોટે ભાગે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક એક માટીનો લેપ કે અલગ અલગ પ્રકારના કોઈ લેપ લગાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, અથવા તો બે જણા ભેગા થઈને ક્યાંક ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે ભાઈ એની મચકોડ સીધી થઈ જાય, એવા પ્રકારે પણ કંઈક ઉપચાર કરતા હોય છે। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सब चीज़ें गलत धारणा है, लिटरली मैं बताना चाहता हूँ। और लोग जो है इसमें बहुत पारंगत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे कुछ दिन पहले ही ऐसे ही हुआ था कि एक लड़की थी, उसने हाई हील सैंडल्स पहने थे और अचानक उसके पैर की तरफ उसका पैर जो है वो मुड़ गया। और जैसे ही मुड़ गया तो ऐसी कंडीशन बहुत सारे लोग उसकी तरफ आए और एक बूढ़े से अंकल थे, उन्होंने बोला कि चलो चलो उठो उठो, कुछ नहीं होता, उठते उठो उठो, चलो 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 चलने लगो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पहले से ही उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो तंतु है या उसका जो लिगामेंट है वो क्या हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया। क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो जो लिगामेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो गए। जैसे ही वो लिगामेंट जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 2-3 लिगामेंट्स ब्रेक डाउन हो गए, थोड़ा सा लिगामेंट एक आधा टूटा हुआ बचा हुआ रहता है कि अपने आप को कैसे भी बचा के रखता है, और बाकी जो लिगामेंट्स ठीक रहते हैं। अगर हम उसको बोलेंगे चलो उठ जाओ और फटाफट चलने लग, तो ऐसे कंडीशन में जो आधा सा बेचारा आधा टूटा हुआ रहता है वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाता है। ये भी होता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसी वक्त लेते हैं पैर लेते हैं और उसको वहाँ पर उसको मसलना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत चीज़ें लोग करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि हमारे ब्लड वेसल्स का जो पैटर्न है वो क्या है, ये हमको समझते आना चाहिए। हमारे ब्लड वेसल का पैटर्न है कि जब कभी उसको गर्माहट मिले तो ऐसी कंडीशन में वो डायलेट होगा, और अगर सपोज उसको कोल्डनेस मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो इंटरनल मूवमेंट हुआ तो उसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो गए और वहाँ ब्लीडिंग हो रही है। अगर हम उसको लेकर अगर हम रगड़ना शुरू करेंगे तो रगड़ने से क्या होगा, उससे हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होंगी तो गर्माहट से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में फिर से उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा और दूसरे दिन उसका पैर जो इतना बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ कभी भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। तो हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में हमको राइस अप्लाई करना चाहिए। व्हाट इज़ राइस? राइस मतलब ये नहीं कि हम चावल जो है वो लगाएं। राइस का मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है राइस का। तो व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइस, ये हमको समझते आना चाहिए। तो हम RICE के बारे में बात करें तो R जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो I जो आएगा, सबसे पहले आएगा आइस एप्लीकेशन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया कि जब कभी हमारे ब्लड वेसल्स को ठंडक अगर मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो सिकुड़ेगी। तो हमें वहाँ पर आइस एप्लीकेशन करना है, सबसे पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट जो है उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिगामेंट्स ब्रेकडाउन हो गए, तो लिगामेंट जब ब्रेकडाउन हो तो उसको इंजुरी ना हो और फर्दर इंजुरी ना हो, तो उसको सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सपोर्ट की आवश्यकता जब कभी लगती है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्रेप बैंडेज लगाते आना चाहिए। तब क्रेप बैंडेज कैसे लगाते हैं ये आप किसी डॉक्टर से भी आप लगवा सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ 8 में हमको क्रेप बैंडेज बनाना है ताकि उसको हमको अच्छे सपोर्ट दे सके। तो राइस में आ तो हम बाद में बात करेंगे, आई सी हो गया, आई मतलब आइस एप्लीकेशन, सी मतलब क्रेप बैंडेज और ई मतलब एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है जब हम रात में अगर जब सोते हैं तो हमारा पैर जो है एक तकिया ऐसी रखनी है, एक तकिया ऐसी रखनी है और हमारा पैर जो है वो ऊपर रखना है ताकि जो है ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे से होते रहे और पैर जो का साइज ना बढ़े। और आर जो पहले जो दिया था वो था रेस्ट के लिए, तो उसको हमको पैरों को हमको रेस्ट देना है, आराम देना है। तो प्लीज़ जब कभी ऐसे अंदर की मूव अगर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उठ के चलने के लिए नहीं बोलना है, उसको घसरना भी नहीं है। उसमें बाम लगाते हैं, मूव लगाते हैं। दोस्तों बाम और मूव जो है वो गर्माहट देती है। गर्माहट देने से मैंने अभी बताया ब्लड वेसल्स हमारे डायलेट हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ब्लीडिंग बढ़ेगा। ब्लीडिंग बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को और तकलीफ दे देंगे। और मैंने बताया हमको पेशेंट का तकलीफ बढ़ाना नहीं, हमको पेशेंट का तकलीफ कम करना है। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखना, राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर क्रेप बैंडेज एंड ई फॉर एलिवेशन। तो प्लीज़ दोस्तों स्प्रेन जब कभी हो जाए या तंतु टूट जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें राइस एप्लीकेशन करना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, और राइस में अगर हम देखें स्प्रेन के अंदर में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं। रूटा है, आर्निका बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो आप वो पर्टिकुलर दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ दवाइयाँ जब कभी ले तो खुद ना ले, होम्योपैथिक दवाई हम होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, क्योंकि उसके जो डोजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर ही जानता है, आप लोग नहीं जानते। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग, दैट इज क्रैम्प्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ स्प्रेन और क्रैम्प्स में ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। क्रैम्प्स मतलब क्या, जैसे अभी आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं, क्रैम्प्स का मतलब होता है कि जब हमारे पैरों के पिंडलियाँ जो है या हम बोलते हैं कि तो वहाँ पर सडन पेन होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे रीजंस क्या है ये हमको समझते आना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब कभी, नेक्स्ट स्लाइड सर, ऐसा देखा गया है कि अगर हम उस मसल्स को अगर देखें, अगर आप वो पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हो तो वहाँ पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। अगर ये जो ब्लड वेसल्स जो है, जैसे अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल है, सपोज ये वो मसल है, उस मसल के अंदर में बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स होती है और उसके अंदर में और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। ये जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है ये नॉर्मली बंद होती है, स्टॉप यानी कि बंद होती है, यानी कि तो नॉर्मली जब कभी कोई एक्सरसाइज करता है, जब कभी कोई भी एक्सरसाइज करे तो ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज में वार्म अप एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वार्म एक्सरसाइज इसलिए किया जाता है ताकि ये जो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स ओपन हो जाए, और ब्लड वेसल्स ओपन होने के बाद वो पर्टिकुलर जो भी चीज़ें हैं वो मेन सर्कुलेशन में आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कभी भी हम बिना वार्म अप किए जब कभी हम डायरेक्टली कोई चीज़ करना शुरू करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो पहले से ही बंद है, और जब बंद है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ के जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली मिलता नहीं, और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन ना मिलने से एरोबिक रेस्पिरेशन ना होते हुए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब कभी होता है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जब कभी बनता है तो ऐसी कंडीशन में इट गेट कलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से वो पर्टिकुलर ब्लड मसल जो है वो पूरी तरह से सख्त हो जाती है और हमको बहुत, पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज़ दोस्तों जब कभी ऐसी सिचुएशंस आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखते आना चाहिए। तो जब कभी क्रैम्प्स अगर आ जाए तो हमें किस तरह से ध्यान रखना है, तो उसके पीछे की रीजंस क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये हमें समझते आना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बंद है, और हमने वार्म अप एक्सरसाइज नहीं की तो उसकी वजह से क्या वो बंद के बंद ही रहे, तो उनको जो सेल्स को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो प्रॉपरली मिल नहीं रहा, तो ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन वो सेल्स जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलता है और उसके वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और वो लैक्टिक एसिड वो कलेक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर मसल्स के आजू बाजू में, और उसके वजह से देयर इज अ हार्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल सॉकर्स, और वो हार्डनेस जब कभी आता है इट कॉजेज वेरी बैड पेन, पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, और उसी को हम क्रैम्प्स ऐसे बोलते हैं। तो
अभी हमने बताया कि यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो है क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल्स बंद है, तो उस ब्लड वेसल्स को हमको ओपन करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि और वो सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ जाएंगे, तो लैक्टिक एसिड जो निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं। ऐसी जगह पर हमको वार्म एप्लीकेशन करना है। तो किस जगह पर कोल्ड एप्लीकेशन करना है और किस जगह पर वार्म एप्लीकेशन करना है, ये अप्लाई करने से पहले दिमाग में हमें पूछना चाहिए कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई होंगी। क्या यहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट हुए या यहाँ पर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुए। तो जब कभी क्रैम्प्स अगर रहे तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हम वार्म एप्लीकेशन वाली चीज़ें जैसे आयोडेक्स है, मूव है, जो स्प्रेज हैं, पेन रिलीफ स्प्रे जो है, जो लगाने के बाद गर्माहट देते हैं, वो अगर हम करेंगे तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट होंगी। ब्लड वेसल्स जैसे डायलेट होंगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड जो जमा था वो फिर से एक बार फ्लो में आएगा और फ्लो में आने के बाद वो जो पेन जो है वो इमीडिएटली कम हो जाता है। जब कभी क्रैम्प्स अगर आता है, मैं बताना चाहता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आती है वो है क्यूप्रमेट। और मैं बताना चाहता हूँ क्यूप्रमेट से भी बहुत स्पीडली एक्शन करने वाली जो है ना, उसी की एक साथी है, उसका नाम है क्यूप्रम आर्स। वो बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है जो क्रैम्प्स के लिए, जो इमीडिएटली रिलीव करने के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसके साथ में राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर रहा तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके हम मैकफॉस और कोलोसिंथ ऐसी भी दवाइयाँ हम लोग देते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है क्रैम्प्स के लिए। और साथ में हमें फर्स्ट एड के तौर पे हमें वहाँ पर क्या लगाना है, गर्माहट अप्लाई करना है और उसको रेस्ट देना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ दोस्तों, जब कभी क्रैम्प्स जब कभी आए तो हमें वार्म एप्लीकेशन करना है। स्प्रेन आए जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ गर्म एप्लीकेशन नहीं करना है, वहाँ पर हमको कोल्ड एप्लीकेशन करना है। ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन करना है। बहुत सारे लोग स्प्रेन की ट्रीटमेंट क्रैम्प्स में और क्रैम्प्स की ट्रीटमेंट स्प्रेन में कर देते हैं और उसके वजह से पेशेंट की तकलीफ बढ़ा देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, किसी को भी ट्रीटमेंट देना है या फर्स्ट एड देना है, पहले हमें सोचना है और सोचने के बाद ही हमें उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्रैम्प्स में इतना सफिशिएंट है। आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंट बाइट है। एंट बाइट मतलब चींटी काटना। तो चींटी काटती है तो क्या करते हैं हम लोग, मेहुल सर क्या करते हैं चींटी काटते हैं तो? चींटी काटते हैं तो सर लोग अलग अलग तरीके के, या तो वहाँ पर कोई घिसता है, यस, बराबर, या तो कुछ छिड़कते हैं उसके ऊपर हाँ। ताकि जो उसका जहर वो निकल जाए, Yes. ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, या yes. पानी ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अलग अलग तरीके के लोग अपने तरफ बिल्कुल से सही, करते हैं। बिल्कुल सही। मैं बताना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग एंट बाइट जब कभी होती है, चींटियाँ जब लाल कलर की चींटियाँ जब काटती है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो वो पैर से ऐसे, पैर जो है वैसे पटकना शुरू करते हैं ताकि वो गिर जाए, वो एक कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, पानी से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी इनइफेक्टिव है। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बताया हमको साइंटिफिक होना है। अगर हम साइंटिफिकली अगर हम उसके पीछे के रीजंस अगर समझते हैं तो हम और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। अगर हम देखते हैं कि जो एंट जो होती है उसको हम हमारे मेडिकल और हमारे बायोलॉजी में उसको हम फॉर्मिका ऐसे बोलते हैं। हम फॉर्मिका क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब कभी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आती है या उसको तकलीफ जब कभी होती है तो वो एक पर्टिकुलर एसिड रिलीज करती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और वो फॉर्मिक एसिड हमारे जब स्किन पे जब एक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन को जलन होती है, और जलन होती है तो हमको लगता है कि उसने काटा। एक्चुअली उसने काटा नहीं, उसने क्या किया, उसमें फॉर्मिक एसिड छोड़ दिया। फॉर्मिक एसिड जब कोई छोड़ दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो पर्टिकुलर चीज़ कितना भी उसको रिमूव कर दो, कितना भी पानी से तुम धो, उससे तुमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ऐसी कंडीशन में हमने स्कूल में 8वीं कक्षा में या 7वीं कक्षा में पढ़ा है कि एसिड के साथ में हमको बेस अगर हम कर दे तो ऐसी कंडीशन सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमको बेस एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बेस में क्या करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे घर में आजू बाजू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम बोलते हैं नहाने का साबुन, सोप। वो जो सोप जो होता है, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव बेस। अगर हमें कभी भी एंट बाइट होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पर सोप एप्लीकेशन करना है और सोप का जो झाग है वो वहाँ पर लगा के रखना है। तो ऐसी कंडीशन में जो जलन है वो कुछ समय के बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है और इससे चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। नंबर 1 पॉइंट। मैं नंबर 2 पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कभी वहाँ पर एसिड जब गिरता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाते हैं, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सूजन आ जाती है और बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें अगर कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड सोप वाटर अगर डालते हैं तो भी बहुत इफेक्टिव रहता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जब कभी एंट बाइट हो तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ पैर झटकने से नहीं होगा, ना ही हमें वहाँ पर सिर्फ पानी से करना होगा, पानी डालने से होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर लगाना है हमें बहुत सारा साबुन, और झाग जितना रहेगा उससे तकलीफ जो है वो कंट्रोल में आएगी। तो ये हमारा एंट बाइट का था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है बी स्टिंग। जो मधुमक्खी जब काटती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मधुमक्खी जब काटती है तो ऐसी कंडीशन में, सर स्लाइड दीजिए, स्लाइड।
यस जब कभी मधुमक्खी अगर काटती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आपके इसके ऊपर मैं आपको देखा है, जब कभी मधुमक्खी काटती है तो सबसे पहले उसका जो जो स्टिंग होता है या उसकी जो क्या बोलते से उसका जो कांटा होता है, उस डंक जो होता है उसको हमको सबसे पहले रिमूव करना है। तो प्लीज़ हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग फर्स्ट एड किट के बारे में बात करेंगे, तो उस फर्स्ट एड किट के अंदर में मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपके पास में वो चिमटा भी होना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ को इमीडिएटली हम रिमूव कर सके। जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे उसके बाद फिर हमको क्या करना है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर मैंने अभी बताया कि ये जो पर्टिकुलर जो हनी बी होता है, वो हनी बी भी जब वो डंक मारती है तो उसके अंदर में भी एक एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो सूजन जब भर जाती है और हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको ठंडे पानी से अप्लाई करना है क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पर डायरेक्ट हो रही है, तो उसको कंस्ट्रिक्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन में ठंडा पानी और साथ में हमको सोप वाटर, इससे अगर हम लोग चीज़ें करते हैं तो इमीडिएटली हमारे बी स्टिंग से हम लोग निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारा वो आएगा स्नेक बाइट। जब कभी स्नेक बाइट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो सांप जब कभी काटता है तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करना पसंद करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सांप जब कभी काटता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको सांप काटता है उसको उसके ऊपर में क्या बीतती है वो ही जानता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ना वो फर्स्ट एड देने से पहले हमको उसको साइकोलॉजिकली हेल्प की सख्त आवश्यकता होती है। मैं बता रहा हूँ, जब कभी किसी को सांप काटता है ना तो सबसे पहले उसके दिल में ना डर रहता है कि मैं मरने वाला हूँ, और वो डर को रिमूव करने का काम जो है वो एक फर्स्ट एड वाला जो और जो डॉक्टर होता है उसका काम होता है। तो प्लीज़ दोस्तों जब कभी भी किसी को सांप काटे तो सबसे पहले कोई भी फर्स्ट एड देने से पहले सबसे पहले उससे बात करो, उसको बताओ कि ये जो पर्टिकुलर जो सांप है वो सांप जो है वो जहरीला सांप नहीं है। डोंट वरी, सांप जो होता है वो सिर्फ सांपों में सिर्फ 15 to 17% ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो उसको ये बताते आना चाहिए। अगर हम ये कॉन्फिडेंस देते हैं उस पेशेंट को तो उसको भी लगता है कि ओके ये जहरीला नहीं है, इसका मेरे जान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्लीज़ जब कभी स्नेक बाइट होता है तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते करते हमको पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जाना है एंटी वेनम ड्रग देने के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले उससे बात करना शुरू करना, उसके दिल में जो भी बात है उसको सुनना और उसको बताने की कोशिश करना। तो हमें समझते आना चाहिए कि स्नेक्स जो है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, हम कैसे हम पहचानेंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर उसके पहले वाला सर, हाँ, अगर हम उसको देखते हैं तो डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से अगर बात करें तो पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक में अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो किस तरह से करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 15 to 17% स्नेक्स जो हैं इंडिया के अंदर में या पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ पॉइजनस हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो नॉन पॉइजनस हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सांप हमको काटता है तो वो किस प्रकार का काट रहा है। अगर उसमें एक जो अगर हम तुमने देखा वहाँ पर लिखा हुआ देखा है वेनमनस जो स्नेक है, तो वेनमस जो स्नेक है उसके जो दांत सामने के वो बड़े होते हैं और ऐसी कंडीशन में, और बाकी जो दांत है वो छोटे होते हैं, और लेकिन जो नॉन वेनमस जो है उसके दांत जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब कभी ऐसा लगा कि उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ दांत का इंप्रेशन है और कोई बड़ी लॉन्ग इंजुरी नहीं है, इसका मतलब वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। और अगर सपोज वो दांत वाला अगर बड़े दांत अगर दिख रहे हैं इसका मतलब वो वेनमस है। लेकिन वो वेनमस होने के बाद भी पेशेंट को बताने की टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स नॉन पॉइजनस स्नेक, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं 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 ये तो वही था, तो वो पेशेंट उसी वक्त मर जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों जब कभी ऐसा कोई पेशेंट तुम्हारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखते आना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसकी स्किन को भी अगर देखेंगे तो स्किन में अगर सपोज पैरलिज्म अगर मेंटेन है, पैरलिज्म मतलब उसकी जो स्किन के ऊपर जो रेशे हैं वो अगर सीधे 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 दिख रहे हैं वो वेनमस है, और अगर सपोज वो उसमें आड़े तिरछे अगर दिख रहे हैं तो वो नॉन पॉइजनस है। ये भी एक डिफ्रेंसिएशन है अगर आप चाहो तो। प्लीज़ दोस्तों जब कभी ऐसी सिचुएशंस आती है, हमारे होम्योपैथी के अंदर में बहुत इफेक्टिव ड्रग है जिसका नाम है गोलांड्रेना मदर टिंचर, बहुत इफेक्टिव ड्रग है। इसके साथ में ल्यूकस एस्पेरा नाम की एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन देकर इंटरनली और एक्सटर्नली हम अप्लाई करके उसके जो चीज़ें हैं उसको कम कर सकते हैं। याद रखना जो भी फर्स्ट एड दे रहा है फिल्मों की तरह माउथ से उसका सक करके कभी ना करे। प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ ब्लंडर्स, नहीं तो क्या होगा कि उसका जो जहर है वो आपके माउथ में चला जाएगा और आपको भी तकलीफ हो सकती है। तो प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, और इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है क्योंकि उसको एंटी वेनमस ड्रग की सख्त आवश्यकता है। तो हमें इसकी भी ध्यान रखते आना चाहिए। तो
इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, हम लोग मुझे लगता है कि फ्रैक्चर्स फीवर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो बुखार जब कभी आता है तो हमें फर्स्ट एड के तौर पे हमको ऑफ कोर्स हमको मेडिसिन देनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है टेपिड स्पॉन्जिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पानी हमें गीले कपड़े से हमको उसको पोंछना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और लेकिन हमें उसका सही तरीका क्या है वो हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हम गलत तरीके की तरफ नहीं जाएंगे, सही तरीके की तरफ जाएंगे। हरदम ख्याल रखना, जब कभी हम जिस पानी के अंदर में जिस पानी से हम लोग उसको रब करने वाले हैं, उस पानी के अंदर में थोड़ा स्पिरिट या अल्कोहल अगर डालते हैं तो उससे जब हम उसको रब करते हैं तो जब कभी वो अल्कोहल जब एवापोरेट होता है तो वो एक ठंडक दे के जाता है, उससे टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो प्लीज़ जब कभी किसी को फीवर अगर आए तो ऐसी कंडीशन में हमें उसके अंदर अल्कोहल डालना है। अल्कोहल डालने से वो पर्टिकुलर जो चीज़ है आप स्किन को जब अप्लाई करेंगे तो ठंडक देख के वो आएगी और उससे टेम्परेचर भी कम होता है। टेपिड स्पॉन्जिंग जब कभी हम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको नीचे से कभी ना शुरू करें, प्लीज़ हरदम सर से नीचे की तरफ जाए, उससे ही टेपिड स्पॉन्जिंग जो है बहुत इफेक्टिवली काम करती है। फ्रैक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्चर जो है वो क्या होता है हमको समझते आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर का मतलब यही होता है कि जिसके अंदर में हमारे जो हड्डियाँ हैं, किसी इंजरी हो जाए और उसके से हमारी हड्डी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। जब कभी हड्डी जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर जो इंजरी जो है वो हड्डी फ्रैक्चर है या सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर पेन है, ये हमें डिफ्रेंसिएशन करते आना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, फ्रैक्चर के अंदर में लोग मरते फ्रैक्चर से कम हैं, लेकिन वहाँ से फ्रैक्चर पॉइंट से हॉस्पिटल में लेके जाते वक्त अगर हम फर्स्ट एड प्रॉपरली नहीं दिए तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम वो मूवमेंट अगर होती है उसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट को जाते वक्त तकलीफ हो जाती है और उसके वजह से उसको सीवियर पेन होता है, उसको शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो फ्रैक्चर है या नहीं हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर कोई पेशेंट अपने को हाथ लगाने दे रहा है मतलब वो फ्रैक्चर नहीं है, बी केयरफुल। फ्रैक्चर है तो वो हाथ भी लगाने देंगे, अगर हम उसको तरफ उंगली भी करेंगे तो दूर दूर लेके जाएगा। वो बोलेंगे जो भी बात करना है दूर से बात करो, उसको टच नहीं करना है। तो इतनी हाइपर सेंसिटिविटी अगर है तो समझ जाओ वो पर्टिकुलर एरिया में फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर जब कभी रहता है तो ऐसी कंडीशन में हमें उसके एक जॉइंट ऊपर और उसके एक जॉइंट नीचे को इमोबलाइज करना है। अब इमोबलाइज मतलब क्या, हमारे पास में कोई स्लेट हो या कोई लकड़ी है वो, या तो फिर कोई छाता है वहाँ पर उसको लगा दे, यहाँ पर एक कपड़े से बांध दो और यहाँ पर कपड़े से बांध दे, ताकि ये जो मूवमेंट है वो ना हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बोन के ऊपर में एक कवरिंग होती है जिसको हम पेरियोस्टियम ऐसे बोलते हैं, और उस पेरियोस्टियम के अंदर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे नर्व्स होते हैं, और जब कभी वो मूवमेंट होती है ना, कॉज सीवियर पेन, उसके से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अगर इमोबलाइजेशन अगर किया है, मतलब ये और ये अगर हमने बांध दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और इससे नहीं कि हम पेशेंट को बचा सकते हैं। इसके साथ में हम बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी है, सिम्फाइटम है, कैल्केराफॉस, जो बहुत इफेक्टिव ड्रग करती है एज फार एज द फ्रैक्चर इज कंसर्न। लेकिन याद रखना, फ्रैक्चर के अंदर में हमको पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन की भी आवश्यकता, हॉस्पिटल में जाकर उसको ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो થેન્ક યુ। યસ, ખૂબ જ સરસ સાહેબ આપે જે વાત કરી પ્રાથમિક સારવારમાં હોમિયોપેથી, અને ઘણા બધા વિષયો એવા હતા કે કદાચ સૌ કોઈ દર્શક મિત્રો માટે અને આપણા હોમિયોપેથીના વિદ્યાર્થીઓ પણ ઘણીવાર કાર્યક્રમ નિહાળતા હોય છે તો તેમને પણ આ ઘણી બધી જાણકારી મળી હશે। મને સાહેબ આપે જે આટલી વાત કરી એના પરથી 4 અગત્યની એક ક્વોલિટી લાગી કે જો પ્રાથમિક સારવાર આપનાર જે કોઈ ડૉક્ટર હોય અથવા તો કોઈ જાણકાર વ્યક્તિ હશે તો એની પાસે એવી 3-4 સારી આવડત હોવી જોઈએ। જો એ આવડત એની પાસે હોય તો નક્કી એ પ્રાથમિક સારવાર છે એ સારી આપી શકશે। એમાં પહેલાં પહેલું આપે જે વાત કરી દરેક પરિસ્થિતિની, આપણે અલગ અલગ પરિસ્થિતિની વાત કરી। આપણે શરૂઆત કરી હતી કે ભાઈ ગળામાં માછલીનો કાંટો ફસાઈએ ત્યાંથી વાત કરી, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે હાથમાં ફાંસ ઘૂસી જાય એની પણ વાત કરી, કાનમાં ક્યાંક મચ્છર કંઈ ઘૂસી જાય, આ બધા સામાન્ય આપણા રોજબરોજના જીવનમાં જોવા મળતા પ્રશ્નો છે। આપણે બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈકને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિથી અસરગ્રસ્ત થયેલા જોયા હશે, અને આ બધી પરિસ્થિતિમાં પ્રાથમિક સારવાર માટે જો અગત્યની બાબતો કોઈ હોય તો એક પહેલાં પહેલું છે કે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય ત્યારે નિરીક્ષણ કળા, તમને બરોબર ઓબ્ઝર્વ કરતા આવડવું જોઈએ કે ખરેખર શું પરિસ્થિતિ થયેલી છે એ તમને આવડવું જોઈએ। બીજું એક કાર્યકુશળતા અને કુનેહ, એટલે કે એ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી, એ પણ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે। દરેક પ્રાથમિક સારવાર આપનાર દરેકે આ બાબત ખાસ સમજવાની છે કે એનામાં એક પ્રકારની કુશળતા હોવી જોઈએ, એ પરિસ્થિતિ હેન્ડલ કરવા માટે કુશળ હોય, અને જો એનામાં એક પ્રકારની કુનેહ હશે તો એ પરિસ્થિતિને સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકશે। ત્રીજી એક બાબત છે એ કોઠાસૂઝ। માણસને સામાન્ય રીતે ખબર પડવી જોઈએ કે આમાં લોહીની નળીઓ સંકોચાઈ ગયેલી છે, આમાં એકદમ એમાં પ્રસરણ થઈ ગયેલું છે,
તો અહીંયા ઠંડકની જરૂર છે, અહીંયા ગરમની. તો આ એક પ્રકારની કોઠાસૂઝ જેવી છે, જેથી કરીને તને તરત ખ્યાલ આવે કે અહીંયા મારે બરફ આપવાનો છે, અહીંયા બરફ નથી આપવાનો, એ તરત થઈ શકે. અને સાથે સાથે આત્મવિશ્વાસ પણ એટલો જ હોવો જોઈએ અને સ્વસ્થ પોતે, જ્યારે તે સારવાર આપનાર છે એ પોતે સ્વસ્થ હશે તો દર્દીને સ્વસ્થ રાખી શકશે અને તેને યોગ્ય તબીબી સારવાર. આપણે આ વક્તવ્યની શરૂઆતમાં જ કીધેલું કે આ પ્રકારની પ્રાથમિક સારવારનો મુખ્ય હેતુ એક દર્દીનો જીવ બચાવવો અને એને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે ત્યાં સુધી એને પહોંચતો કરવો. એ યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે પહેલાંનું જે કામ છે એ પ્રાથમિક સારવારનું કામ હોય છે. તો નક્કી જે આપનાર પ્રાથમિક સારવાર આપનાર વ્યક્તિ છે એનામાં પોતાનામાં એક પ્રકારે આત્મવિશ્વાસ હશે અને સ્વસ્થ હશે તો એ દર્દીને ચોક્કસ સારા પ્રકારે પ્રાથમિક સારવાર આપી શકશે અને એને સ્વસ્થ રાખી શકશે. તો સાહેબ, આપે આજે ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું. આ તમામ બાબતો છે લગભગ દરેક માટે નવી પ્રકારની હશે અને દરેકને આમાંથી જાણકારી મળેલી હશે. કદાચ દવા તમારી પાસે પ્રાપ્ય ન હોય, પરંતુ દવા સિવાયના ઘણા બધા ઉપાય સાહેબે કીધા કે જો આપણે તરત જ એને હાથ ધરીએ તો દર્દીને મોટા પ્રકારની તકલીફમાંથી આપણે તરત જ ઉગારી શકીએ અને જ્યાં સુધી એ નજીકના દવાખાને પહોંચે અથવા તો યોગ્ય ડૉક્ટર પાસે પહોંચે ત્યાં સુધીમાં એને ઘણા અંશેની તકલીફમાં રાહત થયેલી હોય અથવા તો તકલીફ વધે નહીં, એ પણ એક પ્રકારની રાહત જ છે. એને જે તકલીફ છે એ તકલીફ વધે નહીં, એ પણ એક પ્રકારે રાહત જ છે. તો એ પણ ચોક્કસ થઈ શકે. સાહેબ, ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું. આપનો ખૂબ ખૂબ ફરી આભાર. એક માહિતી સાહેબ આપની પાસેથી લેવી હતી, આપણી પાસે સમય ખૂબ જ ઓછો છે, પણ આ બાબત પણ હોમિયોપેથી સાથે સંકળાયેલી છે. તો સાહેબ, જે સર્જિકલ તકલીફો છે, આપે મોટાભાગના જે પ્રાથમિક સારવારના ઘણા સારા જે મુદ્દા છે એ આપે આવરી લીધા છે. કદાચ સમય મળે આપને ફરીથી એકવાર અમે આમંત્રિત કરીશું કે જેમાં પ્રાથમિક સારવાર અંગે વધુ વિગતે વાત કરી શકાય. ધારો કે ભાઈ આગ લાગીને દાઝી જવું અથવા તો વીજળીનો શોક લાગવો, આવા પણ અમુક બાબતો વિશે આપણી પાસેથી જાણવું છે. પરંતુ એ સિવાય એક અગત્યની બાબત આપણે એક ટૂંક સમયમાં લઈ લઈએ તો એ જે સર્જરી, ઓપરેશન વખતનો જે પ્રસંગો હોય છે અથવા એના પહેલાં અથવા એ પછી જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતી હોય છે તો તેમાં હોમિયોપેથિક સારવાર ઉપયોગી થઈ શકે? તો થઈ શકે તો એને केवी रीते उपयोग में ली सके? रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब कभी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है जब सर्जरी के लिए जाता है, मैं बता रहा हूँ उसके मन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनको सर्जरी के लिए लेके जाते थे और हमें उनकी होम्योपैथिकली उनका इवैल्यूएशन करना पड़ता था. उनके दिमाग में चीज़ें चलती थी कि यार ये हमारी सर्जरी मेरे पेट पे कट करेंगे, अब उसके बाद मैं ज़िंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये डॉक्टर प्रॉपरली काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं मैं मर के तो नहीं गया. ऐसी बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलती रहती. और उस वक्त हम एकोनाइट नाम की एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है जो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है. एकोनाइट ड्रग जो है उसके अंदर में जो एंजाइटी है उसको कम करती है. तो एकोनाइट जिस दिन सर्जरी है उसके शाम को हमको देना चाहिए. रात के समय सोते वक्त भी एकोनाइट का एक डोज देना चाहिए. सुबह जब वो उठता है उस वक्त देना चाहिए और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है उस वक्त भी एकोनाइट का डोज देंगे. उससे जो एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है. ये ट्रीटमेंट के पहले, सर्जरी के पहले. सर्जरी के बाद की अगर बात करें तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको नौशिया वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसी कंडीशन में फॉस्फोरस नाम की जो ड्रग है बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है जो उसकी जो तकलीफ है उसको रिजल्ट देता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी पेशेंट जो है सर्जरी से तकलीफ तो हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसा बताते हैं कि जब से मेरी सर्जरी हुई तब से मेरे को ये पर्टिकुलर तकलीफ हुई है. ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं. ऐसे जो लोग होते हैं उनको वहाँ पर वो जो पर्टिकुलर जो टाका लगा हुआ है उस टाके पे भी पेन होता है. उस पेन को भी रिलीफ करने के लिए लीडम पाल की दवाई नाम की दवाई जो है बहुत इफेक्टिव है. जहाँ कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं उस कमर में इंजेक्शन जब लगता है तो उस वक्त भी वो पेन जो है बहुत सालों तक और दिनों तक रहता है. उस पेन को भी रिमूव करने के लिए लीडम पाल बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है. यहाँ पर भी ऐसा बताया है कि जब कभी उसने ऐसा वर्ड बोलता है कि जब से वो ऑपरेशन हुआ है तब से मेरे को ये तकलीफ हुई है. ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक दवाई के अंदर में एसिटिक एसिड नाम की एक जो दवाई है बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है जो उसकी जो तकलीफ है उसको वो कम करता है. जब कभी सर्जरी होने के बाद पेशेंट जो है ना आराम से सो, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी रहता है कि यार मेरे पेट के अंदर जो टाके हैं वो कुछ तकलीफ तो नहीं हो जाएंगी, कुछ मेरे को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, मेरा मैं हीलिंग प्रॉपर होगा कि नहीं होगा. जो फर्स्ट डे सोने का जो होता है वो अगर आराम से अगर उसको सुलाना है तो उसके लिए भी एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है, दैट इज़ हाइपरिकम 1M. तो जिस दिन सर्जरी होती है उसी के रात में अगर हम हाइपरिकम 1M का डोज अगर देते हैं तो इससे नहीं क्या वो आराम से अच्छे से सो सकता है. तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी इफेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं. ખૂબ જ સુંદર સાહેબ, આપે આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી અને આજનો જે વિષય હતો પ્રાથમિક સારવાર અને હોમિયોપેથી તેના અનુલક્ષીને ખૂબ જ સુંદર માહિતી આપી કે પ્રાથમિક સારવાર અંતર્ગત કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થઈ શકે અને આપે ખૂબ જ સુંદર ઉદાહરણ દ્વારા આજે પ્રાથમિક સારવાર કેવી રીતે લઈ શકાય અને પ્રાથમિક સારવાર અંતર્ગત હોમિયોપેથિક દવાઓ કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે અંગે ખૂબ જ ઝીણવટભરી માહિતી આપી. તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે નિયામક શ્રી આયુષ કે જેના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરીએ છીએ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નાયબ નિયામક
જ્ઞાનાત્મક તાલીમ અને સંશોધન કે જેમની સતત પ્રેરણા આપણને આ કાર્યક્રમ માટે મળતી રહે છે, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, આપ અમને સતત નવા કાર્યક્રમ માટે પ્રેરિત કરતા રહો છો. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતા સપ્તાહમાં એક નવા વિષય સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી આપ સૌને જય જય ગરવી ગુજરાત.